Good morning, friends and students. Namaskar. Or you can say, I welcome you to my YouTube channel, that is of Dr. Prakash Chandra Jha. It is the motivation time. Now the question here is that, what does motivate mean? To simply make the mindset of a person to be changed. And this can be changed in two ways. One is inspiration, another is manipulation. Manipulation takes you towards dark side, or you can say your inspiration to the bright side, you can say. This morning one of the gentlemen actually met me on the road. He is known to me. I think once or twice I have just met him, you can say. Luckily he is by Mr. Jha. That doesn't matter for me, I don't bother for it. What is his just nativity, what is his caste, what is his relative, just motto, what is this thing, that thing. I simply think any of the person who serve for the sake of the country as a whole, I appreciate that person, I just welcome that person. He proposed to me, join a party. I should not say what party, you must be knowing, you shall guess it over that. I flatly refused, I don't believe in joining the party. If you simply want to do the work without joining a party, you can join, you can do the work, it don't say. Or there is just saying on the part of, you can say it about that Rabindranath Tagore. He simply told it about that in Bengali. Jodi tumhar डाक सुनने को यहाँ से ना तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो. कहने का मतलब है, if nobody comes with you after your call, certainly just move on alone and alone and alone. It is the Almighty one just looking from the sky just makes the very poor path to be really supposed to be paved, and after that you are actually moving towards the area. Some mission you must have. Sometimes the question comes, who is India? Who is Delhi? It is really supposed to deviate, it is really supposed to be scattered. Everybody has got different type of outlook, different type of approach like that. They are really supposed to be just swimming, particularly in the boat that is really supposed to be not clear. It is just getting different type of chemistry. Out of chemistry, a kind of history is to be made. Out of history, a kind of, you can say it about that, life is to be made. Before I move, let me quote my tagline as I in general quote like that. You just listen it very carefully. हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खिलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो. ऐसे हिंदुस्तान के सपने हमने देखे हैं. वैसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहाँ गलियों में जहाँ तहाँ गंदगी होती है. वैसे हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहाँ लोग माथे में लोगों की गंदगी भरते हैं. चाहे जो भी हो, मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है. क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उन बच्चों के प्रति जो बच्चे रास्ते से भटक गए हैं? हो सकता है वो आपका बेटा नहीं है, हो सकता है वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन भारत का बेटा और बेटी है. और जब आप भी भारत के बाप आप हो तो आपका भी फर्ज बनता है. आप अगर भारत के नागरिक हो तो आपका भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्हें रोको. नहीं रोकोगे, अगर युवा बिगड़ गया तो कहाँ जाएगा? आप रोज ही कहते थकते नहीं, 60% जस्ट युवा हमारे देश का है. अगर युवा ही भटक गया तो आने वाले समय में जो बच गया वो लटकने वाला होगा. लटकने वाले के पास कुछ भी नहीं है, वो अपने लटकता है, लोगों को भी लटकाता है. आपने अच्छे कपड़े पहन लिया, आपने अच्छी गाड़ी में रख लिया, आपने आलीशान बंगला बना लिया, और मैं लियो टॉल्स्टॉय को यहाँ पे कोट करता हूँ, एस पाग निग्लेक्टेड बास द हाउस. आप प्रकृति से नहीं जीत सकते. आपने घर बनाया, बाढ़ आता है, वर्षा होती है, आपके घर में भी घुस जाता है, हॉस्पिटल में घुस जाता है, स्कूल में घुस जाता है, शहरों की गलियों में घुस जाता है. जानते क्या रीजन है? आपने जैसे तैसे जहाँ तहाँ बिना प्लानिंग के बना तो लिया आपने, लेकिन अब झेल कौन रहा है? वो आदमी जो नीचे तबके का है, वो आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वो आदमी फिर भी जी रहा है. तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं. यहाँ तो एकदम ऊपर में जो है वो मजे में रहते हैं, जो नीचे में उनको सरकारी मदद मिल जाती है. यह बेचारा मिडिल क्लास करे तो करे क्या? उसके पास एक सवाल है, इज्जत है, हाथ हम कैसे पसार सकते हैं? उसके पास एक सवाल है कि चलो झेलो जिंदगी में, पूरे देश का भार अपने कंधे में ले लो. और वही तो कर रहे हैं वो, है ना. अब यहाँ पे मैं बार बार लोगों से पूछता रहता हूँ, और जैसे सुबह ही निकलते ही आपको घर से निकलते ही रास्ते पे चलते ही होता है दर्शन तस्वीर नेता, है ना. अब निकलो ना घर से, तस्वीर देताओं का दिखाई देता है.
और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि इन नेताओं से ये भी पूछो, आप अपनी तस्वीर लगाओ, कोई बात नहीं, बगल में यह भी लगाओ उस तस्वीर को, वो अपने काम क्या किया है। अगर इस तरह से आप मुहिम छोड़ोगे तो मुझे लगता है कि वो दिखाएगा। और हर जितने भी लोग हैं सबको अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, उसका हिसाब किताब भी मांग सकते हो, क्योंकि आप जनता हो, आप नागरिक हो, आप सिटीजन हो, आप टैक्स देते हो, उन्हीं के पैसे से सैलरी भी मिलते हैं, जो भी फंड होता है उन्हीं के पैसे से मिलता है। आपका अधिकार है, लेकिन आप अधिकार के लिए कहाँ आगे बढ़ते हो। कुछ कहीं फिर भी मिल जाता है, वहाँ पे बढ़ जाते हो। कहीं भाषण सुनने के लिए इकट्ठा होना होता है, हमने लोगों से सुना, वहाँ भी कुछ मिल जाता है, चले जाते हो। अरे जमीन को क्यों बिक्री कर रहे हो यार, इससे बढ़िया मर जाना ज़्यादा अच्छा है। हाथ पसारने से ज़्यादा अच्छा है कि मर जाना अच्छा है। और अगर मरोगे भी तो कुछ अच्छा करके क्यों नहीं जाओगे। यहाँ पे दो तरह की बातें हमने कहा, एक होता है डिफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ ऑफेंस, दूसरा होता है ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। एक किसी ने आपके ऊपर गोली चलाई, आप इधर छिप रहे हो, इधर छिप रहे हो, इधर छिप रहे हो, ये तो हो गया डिफेंस। लेकिन ऑफेंस होता है जो आदमी गोली चलाता है उसको भी खत्म कर दो ना। तो हमारे समाज में आज जो सिचुएशन हो रहा है, कोई देश से बाहर जाके देश के बारे में बड़ाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, मुझे मालूम नहीं। टीवी जो दिखाता है वही हम देख रहे हैं, है ना। उसके बाद हर गली हर मोहल्ले में आप जा नहीं सकते हो। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, दूसरा तीसरे को दोषारोपण करता है। और मैं कहता हूँ बंद करो इन सारे बकवासों को, बंद करो उन इतिहास के पन्नों को जो आपको बार बार लड़ता है। कल को क्या घटा उसको क्यों ढो के ले जा रहे हो, आज क्या कर सकते हो उसके तो आप दिखाओ, है ना। और आज की जरूरत है ये जो 145 करोड़ या 40 करोड़ जो भी है, इसके मुख को अनाज चाहिए, इसके शरीर को कपड़े चाहिए, इसके सर को एक छत चाहिए, इसकी व्यवस्था करो, है ना। ये व्यवस्था अगर कर सकते हो तो आप सही मायने में डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आप अच्छे सिस्टम में चले गए हो। और ये जो सिस्टम जो बार बार कल मैंने देखा उत्तर प्रदेश में करप्ट लोगों को पकड़ने का एक मुहिम, यह तो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। इसको आप क्यों नहीं कर सकते, आप दिल्ली में ही करके देखो ना, आप गली मोहल्ले में जाओ ना, पता करो। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब इसके विरोध में कौन खड़ा होंगे, सबके सब जैसे कहते हैं कि कायदुल की कोठरी में जाते हैं, वहां से काला सब होके निकलते हैं, वही स्थिति हमारी हो गई है ना। लोग कहते हैं कि सामान बाजार में डुप्लीकेट मिलता है, और मैं कहता हूँ आपकी खून जो नस है, नस में जाके देखो वहां भी डुप्लीकेसी आ गई है ना। आप कहते हो कि सामान, और आप कहते हो कि जैसे पूरा का पूरा जहान ऐसा हो गया है। जब आदमी ही डुप्लीकेट हो गया तो सामान की बात तो छोड़ दो, है ना। तो जब आदमी ईमानदार होगा, आदमी के पास जमीन होगा, तो निश्चित ही कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कुछ मिराकल कर सकता है हमारे देश के लिए, ठीक ना। अब हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, लेट वर्क बी दाई स्पीच एंड पीच द अपसॉट। आप भाषण देते हो ठीक है, लेकिन वो भाषण कोई काम का नहीं है। आपके काम आपको दिखना चाहिए, आप बोलो कम लेकिन काम अधिक से अधिक दिखाओ। आपने प्लानिंग बनाई, जो भी बनाई, जिस एरिया के लिए बनाई उसको दिखाओ। वहाँ या भूल जाओ वो किसका एरिया है या आपका एरिया है या नहीं है, तो एरिया आपका ही, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो। आप हिंदुस्तानी हो, अगर आपके हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो निश्चित आप किसी एरिया को डिफाई करोगे, किसी एरिया को सेटिस्फाई करोगे, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो now the question here is that, my dear friend, certainly you saw the very work, and work speaks, is not so. You tell the words particular from their very mouth, person listens and forget it. But when you just actually transform the very just speech that you made into the reality, certainly that particular speech still lasts longer, you can see. Somewhere I had right, it not so. Thought without action is abortion, and action without thought is a folly. कहने का मतलब है कि अगर आपने सोचा लेकिन काम नहीं किया तो बेकार है ना, एबॉर्शन है। और एक्शन विदाउट थॉट इज ए फॉली, और आपने काम करना शुरू किया बिना सोचे हुए, वो भी बेकार है। तो क्या सही है, रिकंसिलिएशन ऑफ द टू कैन टेक यू टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। कहने का मतलब दोनों को अगर मिला देते हो, थॉट और एक्शन, तभी आप किसी मंजिल पर पहुंच सकते हो। लेकिन होता क्या है, या तुम सोचते हैं काम नहीं करते, या काम करते तो बिना सोचे करते हैं, बार बार ऐसा करना पड़ता है। तब रही बात, जो भी है काम आप करते जाओ ना भाई, और जहाँ तक जिसको बचना होगा बच जाएगा, जिसको आगे बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। अब एक हमारी मुहिम है उत्तम नगर को लेकर के, है ना। और मैंने इसे पार्क से शुरू किया था, आज भी लोगों की ओपिनियन लिए, उसके इंटरव्यू भी लिए। और मैं खास करके उन जो डीडीए वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे पार्क पर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। और पार्क एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो प्लेस ऐसा है, वह क्यों नहीं ऐसा करते कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट उसको ले ले, समय पे पार्क खुले, समय पे पार्क बहा दो। आज लोगों ने बताया कि पार्क की जो अथॉरिटी जो उसके इंचार्ज में कभी आते ही नहीं। अब जो कभी आते ही नहीं तो पार्क में क्या होता है नहीं होता, किसी के भाई मीडिया से अगर आप सुनते हैं, पेपर में तो आप रोज ही प्रेजेंट होगे, ये सिस्टम है। तो क्यों नहीं इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप अपनी सत्ता में मग्न हो, आप अपने वाहवाही में मग्न हो,
लेकिन आने वाले जो जनरेशन है, जो दलदल में पड़ा हुआ है, जैसे सिगरेट को पीना, अफीम को लेना, स्नैक को लेना और भी जो लेना है, कैसा हिंदुस्तान रच रहे हो यार। ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जिधर भी चलो सड़कों पे मुझे तो ऐसे ही दिखाई देते हैं, धुआं उड़ता हुआ, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ट्रैफिक की लाइन को धज्जियाँ उड़ाता हुआ, पैदल चलने वाले के लिए सड़क पे जगह का नहीं होना। ये आजकल मुझे लगता है ये आज तक वाले ने भी दिखाना शुरू किया है। तो आज तक वाले दिखाएं, कोई बात नहीं, आप जनता हो, आप भी बोलो मुखर हो। और हमने टैगलाइन बना रखा है यहाँ पे, चल उठ जागरे मन जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आज मैं ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, तस्वीर आप नहीं दिखाओ, भाषण आप मत दिखाओ, आपने क्या काम किया, कितने पैसे आपने अर्ज किया, उसे जरूर दिखाओ। आप जाति जनगणना की बात करते हो और मैं बोलता हूँ कि आप गणना करो। क्या गणना करो? जब से आप नेता बने हो कितने रोकड़े आपने जमा किया, पहले झोपड़ी में थे, अभी आप कहाँ पर हो, है ना। जनता के लिए आपने क्या क्या किया और आप अपने लिए क्या किया। जब तक इसका ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, जिसको आप एकदम पारदर्शिता नहीं दिखाओगे, तो हिंदुस्तान वैसे ही रहेगा, मटिया मेट होता रहेगा। लोग जो फायदे में हैं फायदे में रहते रहेंगे, बाकी लोग जो बेचारे घुटते हैं रात के अंधेरे में। किसी के पास में पैसा नहीं है, किसी के पेट में रोटी नहीं है, किसी के छत नहीं है, और किसी को इन द नेम ऑफ अल्लाह और इन द नेम ऑफ राम व्हाट्स एवर थिंग्स आर देयर, सड़कों पे भिक्षा मांगना ही पड़ता है ना। और आपको लगता है कि आपने नियम बना दिए हैं, लेकिन नियम पूरा पालन होता है या नहीं होता कह नहीं सकता। आप उत्तम नगर से जस्ट वेस्ट के एरिया को देखिए, एकदम एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे अपने डंपिंग ग्राउंड बना रखे हैं, कूड़े फेंके जाते हैं, कूड़े से गंद आता है। जब हम आप जैसे लोग वहाँ से चलते हैं तो नाक बंद करना पड़ता है। जो लोग वहीं रहता है, जिसका घर वहाँ है, क्या उसके साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हो? क्या उसके साथ आप टॉर्चर नहीं कर रहे हो? उसने क्या गलती किया? हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसने क्या गलती किया? उत्तम नगर में पैदा हुआ, उसने क्या गलती किया? उत्तम नगर कह सकते हैं, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास पैदा हुआ। मेरे दोस्त, जगो उठो, समय नहीं हुआ। वैसे खरपतवार को हटा के फेंको जो केवल मौज मस्ती अयासी के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है। आपको जरूरत है कर्मठ, देश के लिए सेक्रीफाइस होने वाले की। आपको जरूरत है वैसे लोग जो निछावर हो जाए देश के डेवलपमेंट के लिए, वैसे नहीं जो भाषण दे रहे हैं, है ना, वैसे नहीं जो आपको छल रहे हैं, वैसे नहीं कुछ झड्डी दे करके, कुछ दारू का बोतल दे करके, कुछ पैसे दे करके आपको गुमराह करते रहते हैं। और चलो, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे लाइफ का टैगलाइन है, मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा लाइन है, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है, कुछ बोलने से घबराता है। बोल देगा दबे जुबान में, लेकिन कैमरे में नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई मेरे? क्या ऐसा डेमोक्रेसी होता है क्या जो लोग डरे 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 सहमे रहते हो? नहीं, डेमोक्रेसी ऐसी होती है जो खुल करके बात कर सकता है। डेमोक्रेसी ऐसी होती है जहाँ खुशबू बिखेरे जाते हैं। ये डेमोक्रेसी वाली स्थिति कहाँ से हो गया? पॉलिटिक्स नहीं होके पॉलिटिक्स कहाँ से हो गया? ऐसे हिंदुस्तान का सपना तो हिंदुस्तानियों ने नहीं देखा था। चलो, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हिंदुस्तान या तो बेहतर होगा या बदतर होगा, अगर सिचुएशन को नहीं बदला जाता है तो। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।